Hello friends, my name is Pavi and welcome back to my YouTube channel. Or today I am gonna talk on types of intelligence test. Yes, my friends, which is of class 12th psychology topic. And I hope this would help you a lot to understand. ठीक है जी? So if I talk about types of intelligence test, we can categorize test in various ways. Like for example, how do you administer the test? या हमारे पास इंडिविजुअल टेस्ट भी होते हैं, वी हैव ग्रुप टेस्ट ऑल्सो. तो एक तो ऐसे बांट सकते हैं. इन द सेकेंड वे यू कैन डिस्ट्रीब्यूट या क्लासीफाई दीज टेस्ट इनटू थ्री पार्ट्स: वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट. सो हमने तीन भाग में बांट दिया, थ्री पार्ट्स में बांट दिया. और इफ यू गो फर्दर यू कैन एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस टाइप्स you can categorize the test into two more parts. For example, कल्चर फेयर टेस्ट एंड कल्चर बायस्ड टेस्ट. ठीक है जी, आप इसमें बांट सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन ऑन दीज वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट. नंबर वन इज इंडिविजुअल टेस्ट. ठीक है, तो अभी इंडिविजुअल टेस्ट में यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू एडमिनिस्टर अ टेस्ट ऑन सिंगल पर्सन, एंड likewise in the group test, as the name which is self-explanatory, it means you can administer a test on multiple students, multiple clients, multiple patients. Patients वैसे बोलना सही नहीं है, clients. ठीक, प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट. क्लाइंट्स पर आप कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो सकता है ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट? हाँ, ये हो सकता है कि आपको ना रैपो फॉर्म करनी पड़ेगी. यू सी दैट ना, यू हैव अ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन एंड यू आर गोना एडमिनिस्टर अ टेस्ट ऑन हिम. तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक अ रैपो. You have to make him comfortable like that. We have to take care of his feelings, thoughts, gestures, behavior and all. A lot of things are there. You know it. Rapport formation में क्या क्या आ जाता है. Now if I talk about the group test, no need to make this rapport formation because we have a lot of students, a lot of individuals, तो इतना तो नहीं हो पाएगा. You have people, just go ahead and administer the test. अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है for the individual test? That is, you can actually take a oral test, you can actually do a written test. Both options are there. However, oral test is little difficult in the case of group test. अब भैया ग्रुप में तो इतने सारे लोग हैं, कैसे लोगे ओरल? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो आई थिंक written test is better, and I would say objective type questions would be the best option for the group test. ठीक है जी. तो now this is something which I have talked about the individual test and the group test. That's over. Now let's move on to the second part, that is the verbal test, non-verbal test and performance test. तीन टेस्ट, तीन कदम. तो if I talk about the verbal test, in the verbal test, verbal का मतलब पता है क्या होता है? Generally if I ask my friends या if I ask any person कि verbal test क्या होगा, पहली चीज़ पता है क्या बोलता है? कि बोलने वाला टेस्ट. अरे नहीं, इट्स नॉट अबाउट बोलने वाला टेस्ट, इट्स अबाउट बोलने वाले के साथ साथ लिखने वाला भी टेस्ट. सो विच कैन बी डन ओरली, विच कैन बी डन रिटन ऑल्सो. सो दैट इज द वर्बल टेस्ट. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वर्बल, not the best part, the best, I would say the feature of this verbal test is you can actually do it only with the literate people. पढ़े लिखे लोगों के साथ ही कर पाओगे. पढ़े लिखे के साथ ही कर पाओगे. जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, वही समझ पाएंगे वर्बल टेस्ट. सीधी बात, नो बकवास. लेट्स मूव ऑन टू द नॉन वर्बल टेस्ट. इन द नॉन वर्बल टेस्ट, यस माई फ्रेंड्स, आप यू हैव एन ऑप्शन. सबसे पहली बात तो इसमें ना डायग्राम्स होती हैं, पिक्चर्स होंगी, इलस्ट्रेशंस होंगे. यू हैव इलस्ट्रेशंस. what you have to do basically, you have to look at the picture, you have to analyze, interpret, give a meaning to it and find the answer. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ नॉन वर्बल के लिए, आप ध्यान दो प्लीज. मान लेते हैं you have three boxes. In one box 1 star, in second box you have 2 stars, in the third box you have 3 stars. Now if I ask you, hey, can you tell me कि फोर्थ बॉक्स में क्या आ सकता है? क्या आएगा? 4 stars, है ना? मतलब यू आप सोच सकते हो ऐसे. तो इसमें आपको पढ़ना नहीं पड़ा, समझना नहीं पड़ा. हाँ, समझना पड़ा लेकिन पढ़ना लेता नहीं पड़ा आपको.
तो पढ़ना लिखना नहीं पढ़ा तभी ये कहलाता है नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है जी। और लेट मी सी, अगर इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी थी वो ये कि नॉन वर्बल टेस्ट इज़ बेसिकली सूटेबल फॉर डेफ एंड डम्ब, यानी कि जो नहीं सुन सकते हैं, दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली पीपल हु कांट लिसन, हु कांट स्पीक, those people can attempt this non-verbal test easily. अच्छा, literate people also do that. Yes, backward children can also do it. वो भी कर सकते हैं. Children who have language and speech difficulties can also go with the non-verbal test. That's the best feature of the non-verbal test. यस, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो इफ़ अ स्टूडेंट इज़ डिसलेक्सिक या कुछ समझने में दिक्कत होती है उसको पढ़ाई में, पढ़ने में, बट डायग्राम्स आर लाइक क्लियर टू हिम या क्लियर टू हर, तो उसको वो समझ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सारे ही जिनको कुछ इशू है समझने में, पढ़ने में, वो सारे कर लेंगे, नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू वर्बल टेस्ट they are more comfortable with the non-verbal test, ठीक है जी। Now let's move to the third one, that is the performance test. Yeah, performance test और भी cool है, you know why? Because in performance test basically you have to complete a task. हमने एक वर्ड यूज किया हुआ है इसके अंदर, मैनिपुलेट, which means we basically ask the individual, hey, एक लाइन है, you just have to move on that line up to this much meters and you have to come back and also you have to grab that glass of water. अगर वो इंडिविजुअल ये काम कर लेता है अच्छे से, सक्सेसफुली जाके ग्लास उठा के वापस आ जाता है, और अगर वापस आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे सक्सेसफुली ही हैज़ डन इट, राइट, वो टास्क उसने कर लिया है। तो ये होती है परफॉर्मेंस टेस्ट, वेयर अ पर्सन हैज़ टू परफॉर्म अ टास्क, ठीक है जी। तो हमने ये 3 पढ़ लिए, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ओ ये नहीं है, सॉरी, ये 3 है ये 3 है, ठीक है। अच्छा, अब ये 3 हो गए ना, अब इसके बाद हमने क्या बचा हमारे पास, नाउ वी आर लेफ्ट विद द कल्चर फेयर टेस्ट एंड कल्चर बायस टेस्ट। अब भैया ये क्या चक्कर होता है? सबसे पहली बात, वी यूजुअली से दैट ना, यार ये तो फेयर बात नहीं है, और हम कई बार कहते हैं यार तू बड़ा बायस हो रहा है उसके साथ, क्या बात है, क्या चक्कर है तेरा उसके साथ, है वे तू बड़ी साइड ले रहा है उसकी, ठीक है। अच्छा, दिस ऑल्सो हैपन्स इन द टेस्ट ऑल्सो। कैसे? मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव एन अमेरिकन टेस्ट है मेरे पास इंटेलिजेंस का। नाउ व्हाट इफ अमेरिकन टेस्ट, इफ आई ट्राई टू यूज दैट या एडमिनिस्टर इन इंडिया या फिर एशियन कंट्रीज के अंदर, फेयर बात नहीं है, दिस वुड नॉट बी अ फेयर थिंग। वाई? बिकॉज दैट टेस्ट हैज बीन मेड with reference of higher class and middle class people of American या फिर यूरोपियन टेस्ट, या फिर यूरोप के लोगों के लिए शायद वो अच्छा हो सकता है, बिकॉज यू नो दैट कि वहाँ का जो उधर के जो लोग होंगे उनकी जो एक लैंग्वेज होगी या उनका जो एक एटीट्यूड होगा, हाउ सोशली दे मीट विद पीपल, दे हैव अ डिफरेंट माइंड सेट देयर। तो हो सकता है वो इंडियन कल्चर या फिर एशियन कल्चर या फिर अफ्रीकन कल्चर से मैच ना करे, एंड दैट टेस्ट विल नॉट गेट मैच्ड यहाँ के लोगों से, तो दिस विल बिकम कल्चर बायस्ड टेस्ट। आई हैव एन एग्जाम्पल एंड आई वुड लव टू शेयर दैट एग्जाम्पल विद यू ऑल पीपल। एक प्रोवर्ब है, ईडियम है, ए बेकर्स डजन, ए बेकर्स डजन, I mean, you write a baker's dozen. माने डजन मीन, यू नो दैट ना, डजन 12, जिसमें 12 चीज़ें होती हैं, एक दर्जन। और बेकर्स मीन्स हु बेक्स केक, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, नॉट चॉकलेट बट केक, पेस्ट्रीज, बन्स, लोफ, ब्रेड, ठीक है। तो काफ़ी साल पहले, ईयर्स बैक इन Western countries, a baker's dozen idiom was famous. You know why? इसके पीछे एक छोटी सी इट्टू सी कहानी है, मैं सुनाऊं, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पक्का। कहानी ये थी कि when bakers used to make loaf bread, जब वो बनाते थे ना, तो in the dozen
दे यूज टू गिव 12 buns या फिर 12 loaves to people. बट होता क्या था, समटाइम्स द वेट ऑफ द सिंगल बन समटाइम्स वॉज नॉट मेजर्ड प्रॉपरली, या वो थोड़ा कम क्वांटिटी का बन जाता था. तो मान लेते हैं अगर 12 आइटम्स में इतना वेट बनना चाहिए तो वो इतना बनता नहीं था. तो कस्टमर्स गॉट एंग्री, हे दिस इज नॉट एग्जैक्टली 12 डजन्स. 12 आइटम्स तो हैं मगर उसका वेट सही नहीं है. तो वॉट दे यूज टू डू, दे यूज टू एड वन मोर बन इन अ डजन. Okay, so slowly and steadily, what happened actually in Western countries, when people wanted to express 13 number, what they used to express, a baker's dozen. Rather, they would say 13 number, they used to say a baker's dozen. Why? Because people there know that this baker dozen means 13 number. कहानी से देखा कैसे रिलेट किया. Now think about this. If someone adds a baker's dozen in Indian IQ test, तो इंडियन पीपल तो ऐसे बोलेंगे ना, भाई ये क्या होता है, डजन मतलब 12, या फिर कुछ वो गलत कर देंगे, या तो वो कुछ गलत मार्क कर देंगे ना आंसर. तो भैया दिस वुड बी अनफेयर, वो अनफेयर हो जाएगा. इसीलिए वो कल्चर बायस्ड टेस्ट होगा अमेरिकन्स के लिए, यूरोपियंस के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए. मगर हमारे लिए तो कल्चर अनफेयर बन गया ना. सो दैट इज वाई माई फ्रेंड्स, द टेस्ट हैज़ टू बी कल्चर फेयर टेस्ट. अब द प्रॉब्लम इज दैट, अब नाउ आई वॉन्ट टू कंक्लूड दिस. वी देर इज नॉट अ सिंगल टेस्ट विच इज perfectly culture fair. Perfectly culture fair, no, we don't have a test. But yes, performance test and non-verbal test, these two tests are more reliable, more culture fair test than the verbal test. Bus. So now I am gonna end up my whole concept and this video also. If you guys have any doubt in this topic, please comment. I would love to help you all. Okay जी, चंगा जी, फिर चलते हैं. सत श्री अकाल, बाय बाय.